What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 11th of June. Today was Sensex weekly expiry. And yesterday, the US markets ended in red. Not just minor red, but decent amount of red. Nasdaq closed down 2.5% in red and S&P 500 was down almost 1.2%. So obviously हमारा जो markets था gap down open होने वाला था and Nifty opened somewhere around 23,100 and Sensex opened down somewhere around 73,500. And this has been the story for last few days now where अगर markets gap down open होता है तो the DIIs will come in and they spend all their money to pump the markets higher, and in the afternoon the FIIs will come and sell the markets at better prices. So fourth consecutive day of proper V-shaped day, and today actually the movement was much higher than one could anticipate. Today the Sensex straddle opened at 380. कल का जो straddle close था 550 था, but आज within the first minute itself the straddle printed a low of 380, and with 380 rupees का straddle the markets moved 1000 points and fell almost 800 points. So total 1800 point swing. During the up move the calls went 10 times and during the down moves the puts went 10 times from their lows, and post 3 p.m. it was madness. Random 150-200 point candle on each side, and when everybody was expected somewhere around 2 o'clock that the markets would be ending somewhere around 74,000 round number for the expiry, the markets broke down 73,800, made a low of 73,700 and again ended somewhere around 73,800 levels. So quite a tricky expiry, and हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे एंड एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आज का जो एक्सपायरी है वो ट्रिकी होने वाला है. एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट रैंडम मूव्स आई वाज फॉर्चुनेट टू क्लोज इन ग्रीन. लेट मी नो इन द कमेंट्स आपका एक्सपायरी कैसा रहा. एंड टुमारो इज फ्राइडे. Nifty is 2DT and the premiums not that great in spite of the post noon sell off. India VIX ended in red. So कल के लिए क्या ट्रेड लेना है, let's plan. Alright, डेली चार्ट के बारे में बात करना आई थिंक बेकार है because it's been the same thing. 12 o'clock के आसपास अगर markets day high के आसपास है तो the FIIs will come and sell the markets, and 12 o'clock के आसपास markets day low के आसपास है तो DIIs will come and prop the markets higher. So same thing that's been playing out day in and day out, and 300 के ऊपर हमको जो डेली क्लोज चाहिए था फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली शिफ्ट बैक द रेंज इनटू द प्रीवियस ओल्ड रेंज, वो नहीं हो रहा है. 23,200 23,300 के आसपास कहीं ना कहीं सप्लाई आ रहा है, एंड द मार्केट्स आर क्लोजिंग समवेयर अराउंड 23,200 एंड 23,100 कंसिस्टेंटली. एंड अगर एक और न्यूज़ आता है तो प्रॉबली 23,000 के नीचे स्लाइड हो जाता है, एंड प्रॉबली वहाँ पे फिर से मार्केट्स एक स्टेप काइंड ऑफ पैटर्न बना के यहाँ पे इस रेंज में ट्रेड करना शुरू कर देता है. इफ़ यू लुक एट द इंडिया विक्स, इवन दो द मार्केट्स आर एट 23,000 लेवल्स, तो इंडिया विक्स अभी भी 15 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसका मतलब ये है कि द थ्रेट ऑफ अ सडन क्रैश इज नॉट देयर, बट एट द सेम टाइम देयर इज नो साइंस ऑफ रिकवरी एज वेल. कॉन्स्टेंटली मार्केट्स कोई ऐसे रेंज बना के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, एंड हायर जाने के लिए मार्केट्स में जो एंथुसिज्म चाहिए बायर से वो नहीं मिल रहा है. दो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ from the DIIs, but FIIs are constantly selling and वहाँ से continuously pressure आ रहा है. मान लो कि अगर 3-4 महीने ऐसे चलता रहा and DIIs के पास पैसा ख़त्म हो गया, and अगर SIP का इनफ्लो है अगर वो बंद होना शुरू हो गया तो then probably we can see a further downfall in the markets. But again I hope that would not be the case, and our markets find the bottom somewhere soon and we start to head higher. So अगर सेंसेक्स की स्ट्रैडल की बात करें, yes the overnight crashes have been rampant because जो risk है वो maximum overnight risk भी risky है, and even with this premium I still feel that the risk is underpriced because 550 rupees पे straddle close हो रहा था, and कल मान लो कि S&P 500 1.2% नेगेटिव जो क्लोज हुआ है उसके जगह अगर 2% अगर क्लोज होता तो हमारा आज का जो गैप डाउन था वो समवेयर अराउंड 800-900 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. सो विथ ऑल दैट रिस्क दैट वी आर टेकिंग फॉर the overnight risk is not priced well, and even for the intraday also of course the VRP regime is negative, and जितना straddle price करता है उससे ज़्यादा ही markets move करता है. So this is an option buyer's paradise, especially if you've got skill and if you've got sniper like पेशेंस. ठीक है, तो कंसिस्टेंटली स्ट्रैडल मतलब 400 के नीचे खुल रहा है ऑन एन एक्सपायरी डे ओवर द लास्ट 3-4 एक्सपायरीज. 400-450 के आसपास खुल रहा है, एंड टुडे इट वाज ओपनिंग समवेयर अराउंड 390 एंड विद इन द फर्स्ट 10 मिनट्स इट केम डाउन टू लाइक 365, एंड वहाँ से
ऑलमोस्ट लाइक 12 o'clock तक मार्केट्स 300 के आसपास ही होवर कर रहा था। स्ट्रैडल का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 300 के आसपास होवर कर रहा था। लाइक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम ओपन का जो स्ट्रैडल वैल्यू था उसका ऑलमोस्ट 80% वैल्यू रिटेन कर रहा था आफ्टर 12 o'clock। तो पहले 3 घंटे के आसपास, मतलब पहले 3 घंटे बिताने के बाद भी सिर्फ 20% ही मतलब स्ट्रैडल लूज किया है ओपन के प्राइस से, दैट टू बाय गिविंग ऑलमोस्ट 800 पॉइंट ऑफ अ डेल्टा मूव। सो एट दिस पॉइंट अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इन डीप रेड, बट लेटर व्हेन द मार्केट्स फॉर्म द टॉप एंड स्टार्टेड रिवर्सिंग, प्रोबेबली एट दिस पॉइंट लोगों का जो मार्क टू मार्केट है थोड़ा इंप्रूव होना शुरू हो रहेगा। बट अगेन यहाँ पे अगेन दो पुट्स विड स्टार्ट टू ब्लीड, बिकॉज यहाँ पे मतलब मार्केट थोड़ा एक रेंज जैसे बनाया एंड वहां पे उसके बाद 74,000 एंड 73,800 900 का जो पुट्स था वो फिर से वापस स्पाइक करना चालू कर दिया था। सो यहाँ पे लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ सीसॉ काइंड ऑफ अ PNL स्विंग टुडे, बट आई वाज साइज्ड डाउन एंड एज आई सेड कल के दिन ही, तो आज का जो एक्सपायरी है थोड़ा ओवर एक्सटेंशन हो सकता है, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडी काइंड ऑफ एन एक्सपायरी। मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि लाइक आज का जो एक्सपायरी है मीन रिवर्शन काइंड ऑफ एन एक्सपायरी मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर मीन रिवर्शन वाला एक्सपायरी होना चाहिए था ना, राइट, यहाँ पे आज का जो क्लोज, कल का जो क्लोज था उससे ही मार्केट वापस आ जाना चाहिए था एंड यहाँ पे इसके इतने रेंज में मार्केट्स वोलेटाइल होना चाहिए था। बट यहाँ पे बिल्कुल कोई भी रेजिस्टेंस को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट नहीं किया एंड फाइनली यहाँ पे भी मार्केट्स इस लेवल को भी रेस्पेक्ट नहीं किया एंड फाइनली जाके कहीं पे एक बहुत ही वियर्ड लेवल से मार्केट रिजेक्ट हुआ है। तो इट वाज काइंड ऑफ अ ट्रेंडिंग डे, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल ऑप्शंस जो थे 30-40 रुपीज़ का जो कॉल ऑप्शंस थे दे वेंट एज हाई एज 250-300 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहे थे। ऑलमोस्ट 1:6 1:7 का जो स्पाइक था वो ऑलमोस्ट कॉल्स में आ गया था एंड दैट्स व्हाई आई सेड अगर आप आज के दिन अगर आपको मीन रिवर्शन ट्रेड ढूंढना है, सर्च दैट मीन रिवर्शन ट्रेड विथ पुट रेशियोज। मैं कल ही मतलब एक्सप्लेन किया था कि पुट रेशियो ऐसे काइंड ऑफ अ ट्रेड्स को मतलब इनिशिएट करो सो दैट अगर मार्केट्स थोड़ा बहुत किसी डायरेक्शन में ओवर एक्सटेंशन भी करेगा ना, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। लेट्स से अगर आप यहाँ पे मान लो कि आप कॉल्स शॉर्ट किए एक्सपेक्टिंग दैट वो मार्केट्स यहाँ से मीन रिवर्ट करेगा, बट यहाँ पे इतना इसमें फ्रॉम हियर टू हियर द स्पाइक ऑन द कॉल्स वॉज मोर देन 200%। जो 100 रुपीज़ पे भी कॉल ट्रेड कर रहा था वो ऑलमोस्ट 300, 350, 400 तक भी पहुंचा रहेगा। बट अगेन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लो अगर आप डेबिट पुट रेशियोस अगर आप बनाते, ऐसे वाला जो ट्रेड स्ट्रक्चर है ऐसी चीज़ को अगर आप डिप्लॉय करते, तो देन इस अपमूव में आपका जो मार्क टू मार्केट है वो बिल्कुल मतलब नेगेटिव में गया नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ आपका जितना डेबिट दिया है उसका आधा या उससे भी कम लॉस में आप बैठे रहते हैं कि आपका ट्रेड को होल्ड करने का कैपेसिटी है काफ़ी बढ़ जाता है। एंड व्हेन द मार्केट्स केम बैक हियर तो ऑब्वियसली आपका जो डेबिट पुट रेशियो है वो ग्रीन में आ जाना चाहिए। ठीक है, सो टुमारो सेंसेक्स निफ्टी STUDT एंड स्ट्रैडल जो है 300 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड दिस इज फॉर टुनाइट्स रिस्क, टुमारोज इंट्राडे रिस्क एंड देन वीकेंड रिस्क, मंडे रिस्क एंड देन एक्सपायरी रिस्क। ये सब मिलके मार्केट्स दे रहा है 300 पॉइंट्स, बट मार्केट्स हर रोज 200-250 पॉइंट्स इंट्राडे में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि अगर हम लोग अंधा ब्लाइंड होके भी मतलब स्ट्रैडल बाई करते हैं और 20-30 पॉइंट्स का प्रॉफिट अगर स्कैल्प करना शुरू करते हैं देन ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग, बट बिकॉज वी डोंट डू दैट, देयर इज नो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, वी डोंट डू दैट। बट डेफिनेटली कल अगर डेल्टा न्यूट्रल अगर कोई ट्रेड करने के लिए प्लान करता है, बैड आइडिया। ठीक है, तो कहाँ पे स्ट्रैडल ओपन होने वाला है, कहाँ पे क्लोज होने वाला है, अगेन आई एम नॉट गोना गेट इनटू दैट बिजनेस बिकॉज काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको प्रेडिक्ट करना। बिकॉज अगर कल मान लो कि गलती से 23,000 के अगर नीचे मार्केट क्लोज दे देता है एंड वीकेंड के अंदर एक एंग्जाइटी के साथ वीकेंड के अंदर चला जाता है, तो देन द स्ट्रैडल माइट एक्चुअली स्पाइक टुमारो। बट अगर मान लो 23,400 23,500 के आसपास अगर मार्केट क्लोज दे देता है तो देन प्रॉबेबली विल सी दैट 280 270 के आसपास भी स्ट्रैडल क्लोज दे दे। सो वी नेवर नो टिल टुमारो स्ट्रैडल कहाँ पे ओपन हो सकता है, कहाँ पे क्लोज होता है वो पता नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मंडे का स्ट्रैडल कहाँ पे ओपन होगा आज के दिन बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, सो टुमारो सिर्फ प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स ही हमको लेना पड़ेगा एंड बैक टू बैक 4 मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ डेज, एग्जैक्ट लाइक मिरर इमेज काइंड ऑफ अ डे है। तो येस, इफ यू हैव टू गो बाय दिस काइंड ऑफ अ लॉजिक देन लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन। मतलब लेट्स से 300 पॉइंट्स का स्ट्रैडल है एंड सिंस दिस 300 पॉइंट्स इज ऑन अ 2DT, let's wait for minimum 150 to 200 points of an intraday move. पहले 200 पॉइंट्स
मूव करने के लिए मार्केट को देंगे, उसके बाद हम ढूंढेंगे यहाँ पे कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, एंड वहां से हम लोग उस मूव को फेड करने के लिए ट्राई करेंगे। सो मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, तो देन मैं वेट करूंगा इधर इस लेवल पे या इस लेवल पे। अगर इधर आएगा तो देन आई शॉर्ट द मार्केट्स, इधर आएगा तो अगेन आई लॉन्ग द मार्केट्स, एंड इसके बीच में कुछ भी नहीं करने वाला हूं, बिकॉज आई वांट द मार्केट्स टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एन ओवर एक्सटेंशन एंड देन आई वांट टू फेड द मूव्स। एंड यहाँ पे अगर मैं टॉप या बॉटम को कॉल आउट करने के लिए ट्राई करूंगा एंड यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो देन यहाँ पे मेरे को सैल्वेज करने के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिकॉज फ्राइडे के दिन जो है यूजुअली मैं जो ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे ट्रेड करना भी है तो देन आई विल सिंपली short naked options with a stop loss or probably I'll take some sort of a debit spread or so। ठीक है, तो अगर short options ट्रेड करेंगे, अगेन अगर आपके पास मार्केट आपके फेवर में भी जाता है बिकॉज ऑफ द वीकेंड रिस्क, तो आपको ज्यादातर टीटा डीके या क्रश देखने को नहीं मिलेगा एंड स्क्यू जो है वो बढ़ता बढ़ता जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। सो मेरे हिसाब से कल के लिए जो ट्रेड स्ट्रक्चर होना चाहिए वो डेबिट स्प्रेड होना चाहिए, मतलब नॉट डेबिट रेशियो स्प्रेड बट जस्ट वर्टिकल डेबिट स्प्रेड। मतलब क्या है, लेट्स से यहाँ पे आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे लाइक आपको मार्केट में लॉन्ग जाना है ना, तो इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग द पुट ऑप्शन यू बाई एन एट द मनी कॉल ऑप्शन एंड सेल एन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखेगा आपको। तो जनरली क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम रहता है, रिवॉर्ड थोड़ा ज्यादा रहता है, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट जो है वो थोड़ा कम रहता है। सो इनिशिएट डेबिट स्प्रेड्स काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि लाइक आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं होने वाला है, स्पाइक्स में आपका जो लॉस है वो बुक नहीं होने वाला है, एंड यू विल हैव अ बेटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप 5 मिनट्स 10-15 मिनट्स का जो कैंडल है उस क्लोज होने तक भी हम लोग वेट कर सकते हैं। नाउ अगर मार्केट गलती से इसके नीचे अगर ओपन हो जाता है तो देन फर्स्ट 5 मिनट्स का जो हाई एंड लो हमको मार्क कर देना चाहिए, एंड इसका जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है उसको ट्रेड करना चाहिए। एंड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नॉट जस्ट इन द डाउन साइड बट ऑल्सो ऑन द अपसाइड। मान लो अगर मार्केट यहां पे खुलता है, लेट्स से 23,000 के आसपास खुलता है एंड फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल ऐसे बन जाता है, नाउ इस कैंडल का जो ब्रेकआउट को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं एंड ब्रेक डाउन को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ब्रेकआउट को इसलिए ट्रेड कर सकते हैं बिकॉज अगर डीआईएस फिर से आके इस गैप डाउन को अगर बाई करने को ट्राई करेंगे तो देन यस, गैप डाउन के जैसे आज का गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होते ही मार्केट ऊपर आना शुरू कर देता है एंड फाइनली लाइक इट विल फाइंड रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड दिस लेवल और दिस लेवल। सो यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकडाउन हो जाता, ब्रेकआउट हो जाता है, उसको हम लोग लॉन्ग डायरेक्शन से ट्रेड कर सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन भी होता है देन इट मीन्स दैट लाइक डीआईएस आर नॉट दैट इंटरेस्टेड और द सेलिंग प्रेशर इज मच हायर बिकॉज गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट्स नीचे जा रहा है, 23,000 को ब्रीच कर रहा है। तो यहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स थोड़ा मतलब इतना गैप डाउन होने के बाद थोड़ा मार्केट मूव होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा कम रहता है, बट ये 5 मिनट का कैंडल का हाई को ही हम लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करने के कारण हमारा जो रिस्क है वो काफी कैप्ड रहता है। मान लो कि कल के दिन, मान लो फ्राइडे के दिन, लेट्स से मार्केट इज एंटिसिपेटिंग सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज ओवर द वीकेंड एंड फ्राइडे के दिन उसको 23,000 के नीचे क्लोज देना है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट फर्स्ट 1 और 2 आवर्स के अंदर 22,800 22,900 के आसपास आ जाने चाहिए एंड उसके बाद यहां पे थोड़ा बहुत पुल बैक देगा। सो फर्स्ट 5 मिनट का लो को ब्रेक करने से ही लेकिन इतना छोटा रिस्क के साथ हमको एक अच्छा वाला रिटर्न हम लोग एक अच्छा वाला रिवॉर्ड हम लोग कैप्चर करने को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बड़ा गैप डाउन होता ओपन होता है तो विल ट्रेड द ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ऑन बोथ द साइड्स। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर अगर कहीं पे भी खुलता है, ठीक है, इस रेंज के अंदर कहीं पे भी खुलता है तो देन विल वेट फॉर द ओवर एक्सटेंशन। यहाँ पे बीच बीच में हम लोग यहाँ पे इस स्विंग्स के आसपास हम लोग ट्रेड को लेने के लिए ट्राई नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा चॉपिंग हो सकता है। अगर आपको ट्रेड लेना भी है तो देन डेबिट स्प्रेड्स लेना पड़ेगा एंड नॉट जस्ट शॉर्टिंग नेकेड ऑप्शंस। ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा। लाइक मैं माइल्ड समवेयर अराउंड पॉइंट ओवरऑल फंड पे लाइक समवेयर अराउंड 0.1% 0.15% के आसपास क्लोज किया, नथिंग ग्रेट। एंड अगेन सेम थिंग पोस्ट 3 o'clock आई स्टार्टेड लूजिंग मनी। 3 o'clock के आसपास दोनों तरफ चॉप हो गया वेयर एट द मनी ऑप्शंस फर्स्ट वेंट 4 times ऑन द पुट साइड एंड देन वेंट 4 times ऑन द कॉल साइड। तो दोनों तरफ chop ho gaya, but yeah, that is what it is, and I'll see you after tomorrow's market action, most probably on Sunday. Till then, take care, bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.